Good evening, students. I am welcoming you all to my YouTube channel, Sargam Educom. In this platform, we are going to learn how to speak English very fluently. In our previous classes, we have learned about how to introduce yourself. हमने अपने पिछले lectures में पढ़ा था कि हम अपना introduction कैसे दें. We have discussed how to tell in your introduction, how to what to say in your introduction. That is your personal information, professional background, आपकी skills, what are your hobbies, your interests, and various other things. These are the things that make your introduction very effective and very interesting. Now, in this class, we are going to learn very basic things. These things are, you all are there and you all are preparing for a very precious and auspicious examination. That is, some students are preparing for SSC examination, some students are preparing for police examination, civil service examination. In all these examination, आपको कहीं ना कहीं interview face करना पड़ेगा. You will face the interview, and in that interview, you will face these two basic questions. What are your strengths and weaknesses? Or tell me something which is not in your resume or CV. ये ऐसे दो questions हैं. These are the questions जो देखने में बहुत simple हैं, but if you think about that, if you think of the answers, you will find very difficult to answer that question. आपने कई बार सुना होगा, you have heard various times कि जिनसे पूछा जाता है what are strengths and weaknesses. There are so many students who are saying my strength is I'm very honest, my strength is I'm very hardworking. So let me tell you one thing. This is not the correct way how to answer the question, because everyone who is facing the interview, they are giving the same answers. So same answer ही देंगे, but how your answer is way different from their answer. आपके आंसर उनके आंसर से कैसे डिफरेंट हो, हम इस क्लास में सीखेंगे. So in this class, we are going to discuss these basic questions. What are your strengths and weaknesses? आपकी strength and weakness क्या है? And second question, tell me something which is not there in your resume. ऐसी चीज जो आपके रिज्यूमे में नहीं है. तो इन क्वेश्चंस के हम आंसर कैसे करें? Now, there are so many students who क्या आंसर करते हैं? My weakness is that I'm very emotional. या कॉन्फिडेंट या ओवर कॉन्फिडेंट दिखने के चक्कर में वो फूल दिखते हैं. जब वो ये आंसर कर देते हैं I don't have any weaknesses. To error resume. हम सब इस फेस को जानते हैं, इंसान गलतियों का पुतला होता है. How can you say that you don't have any weakness? How can you say that? No one is perfect. No one is perfect. आप कहीं भी चले जाओ, इवन किसी एक ऐसी पर्सनालिटी को भी ले लो, अपने हमारे हिस्ट्री की पर्सनालिटी को भी ले लो, लाइक महात्मा गांधी को भी ले लो, या किसी को भी ले लो. आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन एनीवन, बट आई एम मेकिंग माय पॉइंट कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है. Nobody is perfect. So how can you say that I don't have any weakness? बस ओवर कॉन्फिडेंट दिखने के चक्कर में हम क्या करते हैं? डम दिखते हैं. सेकेंड thought, my biggest strength is I'm very motivated and self-driven. See, students, imagine ना इंटरव्यूअर जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, आप ऐसे कैंडिडेट हो जो मेरे पास आए हो इंटरव्यू देने. मैं आपसे पहली बार मिली हूँ, है ना? अगर मैं आपसे पहली बार मिली हूँ तो आप जो मुझे ये बात बता रहे हो कि दैट योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज यू आर वेरी मोटिवेटेड, सेल्फ-ड्रिवन. हाउ आई बिलीव? मैं क्यों बिलीव करूँ? मैं कैसे बिलीव करूं? मैं बिलीव नहीं कर सकती ना, क्योंकि मैं तो आपसे पहली बार. तो अगर आप ये लाइन बोलोगे, माय वीकनेस इज दैट आई एम वेरी इमोशनल और माय बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज दैट आई एम वेरी मोटिवेटेड एंड सेल्फ ड्रिवन, तो इससे क्या होगा? आपके पास क्रेडिबिलिटी नहीं आएगी आपके आंसर्स की. इंटरव्यूअर जो होगा वो आपके आंसर्स पे क्रेडिबिलिटी नहीं देख पाएगा. तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? ऐसी कोई स्टोरी जो आपके आंसर्स को सेटिस्फाई करे, ऐसी कोई स्टोरी जो आपके इंस्टेंसेस को या आपके जो आंसर्स हैं उनको बताए कि हाँ नहीं, वो आपकी स्टोरी आंसर से प्रूव होनी चाहिए. ये जो आप आंसर दे रहे हो
to define these instances now. First, we have to learn new words. हमें पहले नए वर्ड सीखने पड़ेंगे कि हम और कौन कौन से नए वर्ड अपने रिज्यूमे में या अपने आप को दिखाते वक्त लिख सकते हैं. आई एम वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, आई एम वेरी मोटिवेटेड पर्सन, आई एम वेरी सेल्फ ड्रिवन पर्सन. दीज काइंड ऑफ वर्ड्स आर वेरी ओल्ड, बहुत पुराने हो चुके हैं, हर कोई यूज करता है. आप कैसे डिफरेंट बनोगे? So try to learn these new words जो आप अपने रिज्यूमे में या आप अपने इंट्रोडक्शन में जो स्ट्रेंथ का पार्ट आए, then you can add these words and that make difference, that really make difference. Most flexible, flexibility, then adaptability, or OSA, sorry, team player, motivated, committed, fast learner. Flexibility का क्या मतलब होता है? Very resilient. आप हर सिचुएशन में किस तरीके से खड़े होते हो, किस तरीके से सिचुएशन को टर्न अराउंड करके अपने अपने अनुकूल बना सकते हो, अपने फेवर में ला सकते हो. हाउ कैन यू टर्न अराउंड दैट सिचुएशन इन योर फेवर? फ्लेक्सिबल होना, हर सिचुएशन के प्रति रेजिलिएंट, हर सिचुएशन के प्रति आप उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हो. सिचुएशन चाहे जो भी हो, हाउ यू रिस्पॉन्ड. एडैप्टेबिलिटी, सिचुएशन को देख करके उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेना. टीम प्लेयर क्या होता है? सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड द बॉस? लीडर और बॉस में क्या डिफरेंस होता है? और लीडर आर द पर्सन who get along with their colleague, वो उनकी टीम चाहे स्विंग करे चाहे स्टिंग करे, वो हमेशा अपनी टीम के साथ रहता है, उसको मोटिवेट करता है एंड ऑलवेज गेट along with their team. But who is boss? बॉस कौन पर्सन होता है जो हमेशा टीम को इंस्ट्रक्ट करता है. He doesn't care about his team members. Now मोटिवेटेड, परिस्थिति चाहे जो भी हो, आपकी विल पावर हमेशा मजबूत होनी चाहिए. हमेशा आप अपने आप को एक पॉजिटिव साइड में पाओ, मोटिवेटेड साइड में पाओ. ठीक है. नाउ कमिटेड. कमिटेड मेरी कोई कमिटमेंट है, मेरी कमिटमेंट है कि मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगी, इंग्लिश के न्यू वर्ड सिखाऊंगी, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपकी हेल्प करूंगी, ताकि आप कहीं जाओ, आपकी इंग्लिश एक नई लैंग्वेज आप सीख रहे हो, आप एक पर्सनैलिटी डेवलप, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे हो, आप कल को इंटरव्यू में जाओगे, फेस करोगे ये सारी चीजें. तो ये मेरा कमिटमेंट है कि मैं आपको ये टाइम फ्रेम में सिखाऊंगी. बट अगर इस कमिटमेंट को मैं अधूरा छोड़ दूं तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि मैं कमिटेड पर्सन? नहीं, मैं नहीं बोल सकती. वो लाइन आप लोगों ने सुनी होगी ना, रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए. फास्ट लर्नर क्या होता है? जो हर चीज को, ठीक है आपको कोई चीज नहीं आती है, दैट्स ओके. इवन आई एम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर. मैं अभी भी चीजों को सीख रही हूँ. हर कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, हर इंसान अपने जीवन में कुछ ना कुछ चीजें सीखता ही. तो अ फास्ट लर्नर वो होता है जो किसी भी चीज को बहुत जल्दी सीख. जैसे आप लोग इस क्लास में बैठे हुए हो, इंग्लिश सीखने आए हो, नए वर्ड सीखने आए हो, नई चीजें सीखने आए हो, अपने आप को इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करने, कहीं अगर आप रेस्टोरेंट जाते हो, होटल्स जाते हो, हॉस्पिटल जाते हो, ऐसी पब्लिक गैदरिंग में जाते हो जहाँ आपकी पर्सनालिटी के ट्रेट्स सीखें, आपकी पर्सनालिटी उभर करके आए, तो आपकी पर्सनालिटी की पॉजिटिव साइड आई, ये सारी चीजें सीखने आए हो, तो आप क्या हो जाओगे और आप बहुत जल्दी ये सारी चीजें सीख जाओ, तो आप क्या बन जाओगे? फास्ट लर्नर. एंड आई होप इस क्लास में जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो सारे के सारे ही फास्ट है ना. कमेंट करके बताइए कौन कौन फास्ट है. अपने नेम के साथ आप कमेंट करिए, और अभी तक आपने क्या चीजें सीखी है ना वो भी कमेंट करिए. तो ये सारे वर्ड्स हैं. अगर हम अपने रिज्यूमे में, अपने इंट्रोडक्शन में या अपने विषय में बताएंगे किसी को कि मेरी स्ट्रेंथ ये है, दैट विल क्रिएट अ डिफरेंस. ये आपके में डिफरेंस क्रिएट करेगा. जब ये सारे वर्ड आप ऐड करते हो ना, तो पता है क्या शो करते हैं कि यू आर थिंकिंग ऑफ योरसेल्फ.
सोचते हो कि क्या मैं कैसा हूँ, मैं कैसी नहीं हूँ, तो वो सामने वाले पे एक अलग इम्पैक्ट डालता है कि नो ही इज अ थिंकर और शी इज अ थिंकर। तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट नहीं बोलना है आई एम वेरी फ्लेक्सिबल, आई एम वेरी रिजिलियंट, आई एम अडेप्टेबल टू एनी सिचुएशन, ये सारी लाइंस नहीं बोलनी। आपको क्या करना है, जैसे मैं okay? या मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, या मोस्ट ऑफ द बॉयज को क्रिकेट खेलना पसंद होता है, लेकिन सबका ये जुनून ही होता है क्रिकेट खेलना, मुझे तो लगता है बॉयज मतलब क्रिकेट। मैं किसी को एक तो क्राइटेरिया में नहीं रख रही हूँ, बट ये सच है। तो अच्छा, आपके कानपुर में या लोकल जगह पे टूर्नामेंट हो रहा है, एक जोनल टूर्नामेंट हो रहा है, आपको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद और आप अपनी टीम को लीड करते हैं, यू आर लीडिंग योर टीम एंड वो टीम जीत जाती है एंड यू हैव वन वेरियस ट्रॉफीज, आप जीत भी गए, तो क्या दिखा रहे हो यहाँ पे, यू आर शोइंग दैट यू आर अ वेरी गुड लीडर, यू आर अ वेरी गुड कैप्टन एंड अंडर योर कैप्टनसी आपकी टीम जीत गई, ट्रॉफीज लाई। तो ये क्या है, ये पूरा इंस्टेंस हुआ, एक छोटी सी स्टोरी जिसने क्या नरेट कर दिया, विच इज नरेटिंग योर टीम लीडिंग स्किल्स। ऐसे आपको दिखाना है, हाउ यू शो दैट, दिस इज द वे यू शो योर स्ट्रेंथ्स। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, माय ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज फ्लेक्सिबिलिटी टू हैंडल चेंज। मतलब मैं ऐसी हूँ कि मैं ऐसा हूँ कि किसी भी चेंज को हैंडल कर सकता हूँ, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वेदर इट इज नेगेटिव और वेदर इट इज पॉजिटिव। वो बता रहा है या वो बता रही, शी इज टेलिंग और ही इज टेलिंग कि वो अपने प्रीवियस जॉब में, इमेजिन एक पर्सन है जो अपने स्ट्रेंथ के बारे में बता रहा है, ही इज टेलिंग और शी इज टेलिंग अबाउट हिज और हर स्ट्रेंथ। वो किस जॉब में था, एज अ कस्टमर सर्विस की जॉब में था, ना वो दूसरे जॉब में जा रहा है या दूसरे किसी व्यक्ति से अपने स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, तो वो क्या बताएगा कि मैं जब कस्टमर सर्विस की जॉब में था, लास्ट जॉब में, तो मैंने वहां क्या किया, आई टर्न अराउंड दिस नेगेटिव, आई टर्न अराउंड द सिचुएशन और आई टर्न अराउंड द नेगेटिव वर्किंग एनवायरनमेंट। मतलब मैंने वहां के नेगेटिव वर्किंग एनवायरनमेंट को टर्न अराउंड कर दिया एंड क्या डेवलप किया, एक सपोर्टिव टीम डेवलप की। ओके, सो हमने क्या किया कि वो क्या बता रहा है, एज अ कस्टमर सर्विस जॉब में उसने स्टोरी को नरेट किया कि वो किस जॉब में था, एक कस्टमर सर्विस मैनेजर की जॉब में था और उसने नेगेटिव एनवायरनमेंट को टर्न अराउंड करके एक सपोर्टिव टीम को बिल्ड किया, जिससे क्या शो हो रहा है कि वो एक फ्लेक्सिबल तो है और एक अच्छा लीडर भी है, और वो एक अच्छी लीडर भी है। ओके, नाउ सेकंड हमारा क्या आता है, अब हमारा आता है वीकनेसेस। हमारी क्या वीकनेसेस है, जैसे आप ये भी अपने स्ट्रेंथ में बोल सकते हो, आई हैव अ सॉलिड वर्क एथिक्स। मतलब मेरे वर्किंग एथिक्स जो है, मैं काम को किस तरीके से लेता हूँ वो बहुत सॉलिड है, मतलब मैं बहुत सीरियसली हर काम को लेता हूँ। ओके, अब आते हैं हम लोग वीकनेसेस पे। वीकनेसेस क्या होती है, हमारी कमजोरियां। हर इंसान के जीवन में वीकनेसेस होती हैं, बट आपको अपनी वीकनेसेस को डोंट शो योर वीकनेसेस दैट कि हाँ ये इस तरीके से नहीं शो होनी चाहिए कि नेगेटिव इम्पैक्ट डाले। थ्रो अ पॉजिटिव लाइट ऑन योर वीकनेसेस, व्हाट आई एम सेइंग, थ्रो अ पॉजिटिव लाइट, मतलब आपकी वीकनेसेस ऐसे दिखनी चाहिए दैट यू आर वर्किंग ऑन योरसेल्फ, सी दैट आर द वीकनेसेस आई एम हैविंग, बट although I am working on my weaknesses, मतलब I am working on that through positive light। तो क्या है जैसे, और ऐसी वीकनेसेस रखनी है जो एक आपको नेगेटिव ना दिखे, आपके रिज्यूमे में आप जब किसी से बात करो आपको अपने बारे में नेगेटिव नहीं बोलना। पब्लिक स्पीकिंग या पर्सनालिटी डेवलपमेंट, या हम लोग इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं या कोई नई लैंग्वेज या एक नई चीज को हम लोग लर्न कर रहे हैं, तो उसमें एक बात याद रखिएगा, आपको अपनी पर्सनालिटी के बारे में नेवर से एनीथिंग अगेंस्ट योर पर्सनालिटी, अगेंस्ट नहीं बोलना। टाइम मैनेजमेंट, प्रोक्रेस्टिनेशन एंड आस्किंग फॉर हेल्प। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है, किसी चीज को जैसे आप बहुत थिंक करने लग जाते हो ना,
ओवर थिंकिंग, और उस वजह से आपका काम क्या होता है, बिगड़ जाता है, वो नहीं है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ऑल्सो आई हैव ऑलवेज मेट माई डेडलाइन। सी वो यहाँ पर बता रहा है कि मैं हमेशा अपनी डेडलाइंस को मीट करता हूँ। ही और शी इज वर्किंग इन एनी ऑफिस, यहाँ पे बता ऑलवेज मेट माई डेडलाइन, वो हमेशा अपनी डेडलाइंस पर क्या करता है, वो कर देता है, मेट कर देता है। बट ही यूज्ड टू हैव, और आई वो एक व्यक्ति है जो अपनी वीकनेसेस को बता रहा है, ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोच लेना, सोचे घबरा जाना, ये सारी मतलब वो इतना सोच लेता है, घबरा जाता है, इतना एंशियस हो जाता है कि वो बाद में क्या करता है, जैसे डेडलाइन अप्रोच होती है वो बहुत लॉन्ग डे के लिए वर्क करने लगता है या करने लगती है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये एक तरीके का बर्डन है, थोड़ी सी अपनी पर्सनालिटी में वीकनेस आ गई ना कि हाँ हम बहुत लॉन्ग डेज में वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क तो है, हार्ड वर्क तो है, बट यहाँ पे हार्ड वर्क ट्रेड ना शो करके क्या शो हो रही है कि घबरा जाना, एंशियस। तो उसने क्या किया, उसने बताया नाउ नेक्स्ट टाइम ही इज सेइंग, ही इज टेलिंग, ही इज वर्किंग ऑन हिमसेल्फ, वो उसके ऊपर वर्क कर रहा है, he decided to deal with that, so he took, yeah, I took classes on project management and time management. उसने क्या किया कि अपने ऊपर वर्क किया और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट की क्लासेस ली। So in this way he is narrating the whole story, he is narrating the instances where he tell कि उसको ये प्रॉब्लम है, but apart from having this problem he is working on it, वो अपने ऊपर वो कर रहा है। तो इस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। इंग्लिश बोलना ही नहीं आना चाहिए, हमारी पर्सनालिटी भी उस तरीके से डेवलप होनी चाहिए, है ना। हम कहीं जाए तो हम भीड़ से कैसे अलग लगे, हमसे अगर कोई बेसिक क्वेश्चन पूछे, सी हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, आपको हर जगह पूछा जाएगा। उसी के बाद कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए आप इंटरव्यू जाओगे, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपसे हर जगह पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाएगा, आप कहीं भी जाओ। यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर various examinations, where SSC examinations, UPSC examinations, police examinations, where government examination, तो आपको आप अपियर होंगे इंटरव्यू के लिए at some point of time, आपको ये क्वेश्चंस फेस करने पड़ेंगे, तो अभी से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा, लास्ट टाइम के लिए हम कोई चीज फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास ये दोनों चीजें होंगी, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अब आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आपकी कोई एक स्ट्रेंथ या कोई एक वीकनेस आपको लिखनी है। स्ट्रेंथ में लिखना है कि उस स्ट्रेंथ के जरिए, जैसे मैंने आपको क्रिकेट वाला एग्जांपल दिया कि आप एक बहुत अच्छे क्रिकेटर हो, आपकी कैप्टनसी ने, आपकी टीम ने बहुत ट्रॉफीज जीती, ये टीम लीड को शो करता है। ऐसे ही आपके अंदर और क्या क्वालिटी है, जैसे आप बहुत मोटिवेटेड पर्सन हो, बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हो, तो आपकी कोई तो ऐसी लाइफ में चीज हुई होगी ना जो आपके हार्ड वर्किंग ट्रेड को दिखाती होगी, आपको वो पूरा एक इंस्टेंस या 3-4 लाइन की एक स्टोरी सी लिखनी है। वैसे ही वीकनेस के लिए कोई वीकनेस होगी, आप कैसे इसको इम्प्रूव कर रहे हो और कैसे आपने इसको इम्प्रूव कर लिया है, हाउ यू इम्प्रूव, तो आपको ये कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा। आप सब कमेंट सेक्शन में लिखो और मैं जरूर चेक करूंगी कमेंट सेक्शन। नाउ ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है, टेल इज समथिंग व्हिच इज नॉट इन योर रिज्यूमे। हम लोग कभी जाते हैं इंटरव्यू देने, तो वो बोलते हैं कि अगर आप अपने रिज्यूमे के रीड करके ही बता दोगे ना, तो पता है बहुत मोनोटोनस लगेगा और लगेगा आपने कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया, आपको कुछ और पता ही नहीं है अपने बारे में, आप इतने अवेयर ही नहीं है, ठीक है। तो आपको उसके अलावा कौन कौन से वर्ड्स जोड़ने चाहिए, जैसे लीडरशिप, आप एक बहुत अच्छे लीडर हो, नए नए वर्ड सीखिए। इंटरपर्सनल स्किल्स, इंटरपर्सनल क्या होता है, जब आप कहीं काम करते हो, आप एक मैनेजर की पोजीशन पे हो या आप कलीग भी हो, तो आपको फॉर्मल तरीके से अपने मैनेजर से, कलीग से बात करना पड़ेगा ना, उनसे एक रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा। उस रिलेशन के डेवलपमेंट में जो स्किल्स काम आती है उसको इंटरपर्सनल स्किल्स बोलते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, आप कैसे कम्युनिकेट करते हो। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, आप किसी चीजों को ऑर्गेनाइज करते हो। लिसनिंग, सी लिसनिंग इज मतलब लिसनिंग एक ऐसी चीज है ना, अगर आपकी लाइफ में नहीं हुई तो आप एक अच्छे ऑरेटर कभी नहीं बन सकते हैं।
यू आर अ गुड लिसनर देन आप एक अच्छे ऑरेटर बन सकते हैं। अडैप्टेबिलिटी, किसी भी सिचुएशन को, जैसे सिचुएशन है वैसे, जैसी परिस्थिति वैसे। प्रॉब्लम सॉल्विंग, बहुत लोग होते हैं प्रॉब्लम को देख के बहुत घबरा जाते हैं, टेंशन के हाइट में क्या करेंगे, पेपर आने वाले हैं, मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा है, अब कैसे एग्जाम में एग्जाम को पास करेंगे, क्या करें, घबराना नहीं है। उस चीज को हम कैसे हैंडल करते हैं, डिसीजंस, कुछ लोग ना डिसीजंस नहीं ले पाते अपनी लाइफ में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बता रही हूँ, आपके अंदर कोई स्किल हो चाहे ना हो, आपके अंदर एक स्किल होनी चाहिए, अपने फैसले खुद लेंगे। और जिस व्यक्ति के फैसले वो खुद नहीं ले पाता है ना, उसके फैसले दूसरे ले, दुनिया लेती। और जब उसके फैसले दूसरे लेते हैं ना, तो हमेशा फैसले गलत होते हैं और हमेशा हार जाते हैं। आप अपने लाइफ में ना एक चीज सीख कि पहले चाहे कुछ भी चल रहा हो अंदर पे, यहाँ पर वो शो नहीं होना चाहिए कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट रहो। जब आप कॉन्फिडेंट रहोगे ना, दुनिया आपके साथ रहेगी। दूसरी, डिसीजन, आप अपने डिसीजन खुद लेना सीखिए। गलत होंगे हो जाने दीजिए, सही होंगे हो जाने दीजिए, आपके होने चाहिए वो। ये सारी चीजें आपको ऐड करनी है अपने बारे में बताने कि आई हैव दैट इंटरपर्सनल स्किल्स, माय कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी गुड, आई हैव दैट ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, आई एम वेरी गुड लिसनर, आई एम अडैप्टेबल टू एनी सिचुएशन। ये क्या है, वो चीजें जो आप रिज्यूमे में नहीं लिखते हो, या आप लिखते हो रिज्यूमे में नहीं लिखते हो, ये तो क्या होती है, आमने सामने की बातें हैं जो बताई जाती है, ये आपको बतानी है। इसको भी इंस्टेंस के तौर पे बतानी है, कैसे कि अच्छा आप गुड लिसनर हो, मैं कैसे मानूं यू आर अ गुड लिसनर, मैं कैसे मानूं कि यू आर अडैप्टेबल टू एनी सिचुएशन, उसके लिए भी हम इंस्टेंस दें। एक छोटी सी स्टोरी आप बना लो कि आपने, आप ऐसे थे तो आपने, आपके अंदर इंटरपर्सनल स्किल थी तो आपने अपने लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में ये किया, तो इससे क्या हो गया, इस चीज का सुधार हो गया, आपको बहुत प्रोग्रेस देखने को मिली। तो क्या होगा, उससे क्या बोल रहे हैं, पहले जहाँ काम करता था, माय लास्ट एम्प्लॉयर वो होते हैं जो आपको काम देते हैं, एम्प्लॉय जो आप काम करते हैं। कमेंडेड माय कम्युनिकेटिव स्किल, कमेंडेड मतलब सराहना, प्रशंसा करना, राइट डाउन कर लीजिए। उन्होंने मेरी कम्युनिकेटिव स्किल्स को सराहा, उन्होंने क्या बोला कि मेरे अंदर एक आई हैव यहाँ पर लिखो आई हैव सॉलिड एक्टिव लिसनिंग स्किल्स। उस मेरे जो एम्प्लॉयर्स थे उन्होंने क्या बोला, मेरे अंदर एक सॉलिड लिसनिंग स्किल है जिसकी वजह से मैं अपने टीम मेंबर्स को अंडरस्टैंड कर पाता हूँ। ये एक इंस्टेंस हो गया ना, आपने ऐसे नहीं बोला, वी डोंट डायरेक्टली से कि आई हैव वेरी गुड कम्युनिकेटिव स्किल्स, ये नहीं बोलना है। आप एक छोटा सा इंस्टेंस ले लो कि आपने आपके एम्प्लॉयर नहीं बोला और आप बोलो। दूसरी चीज क्या है, my interpersonal skills are highly developed. You have seen, जैसे आपसे बोला गया ना रिज्यूमे में क्या है, आप अचीवमेंट्स आप लिखोगे अपने रिज्यूमे में, इंट्रोडक्शन में आप इंट्रोडक्शन में आप बताओगे ना कि आपने अचीव किया है, तो आप क्या बताओगे, my interpersonal skills are so developed and the various achievements you have been seeing in my resume, आप जो देख रहे हो मेरे रिज्यूमे में, वो मुझे उसका रीजन क्या है, रीजन बिहाइंड इट इज दैट हाउ आई रिलेट टू द पीपल एंड गेट अलॉन्ग विद माय कोवर्कर। इसका मतलब क्या है कि आप जो देख रहे हो मेरे रिज्यूमे में, या जो मैंने आपको बताया है मेरे इंट्रोडक्शन में, मेरी क्या स्ट्रेंथ, सॉरी मेरी क्या अचीवमेंट्स है, वो किस लिए है, क्योंकि मेरे इंटरपर्सनल स्किल बहुत डेवलप है। ये आप नहीं लिख रहे हो अपने रिज्यूमे में, ये आप इंट्रोडक्शन में नहीं बता रहे, ये कब बता रहे हो, जब सामने वाला इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कुछ बताओ जो आपके रिज्यूमे में ना, तो रिज्यूमे में अचीवमेंट्स तो होंगे, तो आप बता रहे हो ना कि मेरी स्किल्स इतनी डेवलप है, उस वजह से मुझे ये अचीवमेंट्स मिले, मैं लोगों के साथ गेट अलॉन्ग कर पाता हूँ, उनकी भावनाओं को जान पाता हूँ। तो ये क्या है, ये ऐसी अचीवमेंट्स आप लिखते हो अपने रिज्यूमे में, अपने इंट्रोडक्शन में अचीवमेंट्स लिखोगे, आप अपने इंट्रोडक्शन में बताओगे कि मेरी कम्युनिकेटिव स्किल्स अच्छी, बट उसको नरेट कैसे करोगे, हाउ टू नरेट दैट। तो ये सारी चीजें एक छोटे छोटे इंस्टेंस बनाओ, आप अपने बारे में सोचिए, थिंक अबाउट योरसेल्फ, थिंक ऑफ योरसेल्फ। आप जब तक अपने बारे में सोचेंगे नहीं ना, तो आप समझ नहीं पाएंगे आपको लोगों से क्या बात करनी। जो इंसान अपने आप को नहीं समझ पाता है ना, वो दूसरों को भी नहीं समझ पाता, सीधी सिंपल बात। और किसी भी कॉन्वर्सेशन को क्रैक करने के लिए आप कहीं भी जाओगे ना, आप किसी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, कहीं भी वर्क करने जाओ ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात होनी चाहिए कि आप दूसरों को कैसे समझ पाते हैं।
और दूसरों को, अपने आप को नहीं समझ पाओगे ना तो दूसरों को नहीं समझ पाओगे। और लाइफ लॉन्ग यही काम आता है, आप चाहे जितने पढ़ लिख जाओ, आपकी कम्युनिकेटिव स्किल्स, कम्युनिकेशन डेवलप नहीं होंगी ना, आप कुछ नहीं कर। और कैसे डेवलप होंगी, जब आप अपने बारे में सोचो, अपने बारे में 2 दिन में आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट का टाइम निकाल लिखिए ये सब। अच्छा मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ थी और ये स्ट्रेंथ मैंने कहाँ शो की, जैसे मैंने टीम लीड क्रिकेट वाला एग्जाम्पल दिया। अगर मैं एक और एग्जाम्पल दूं कि मैं किसी जगह पढ़ाती थी, मैं वहाँ पे टीचर थी या वहाँ के स्टूडेंट्स बहुत शैतान थे, बहुत नोटोरियस थे, बट मैंने कैसे उनको मैनेज किया और कैसे उनके ग्रेड्स में सुधार आया, तो मैं ये क्या बता रही हूँ कि आई एम वेरी गुड टीचर, ये मैंने इंस्टेंस बताया। ऐसे आप सोचिए, लिखिए, these are very basic questions, but apart from these are very basic questions, these questions are very tough. You cannot answer these questions within seconds, you have to think. तो अब थिंक करिए अपने बारे में। तो नाउ आज का लेक्चर हम यहाँ खत्म करते हैं। हमने 2 वेरी बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जाना, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस को कैसे शो करेंगे, इंस्टेंस बताएंगे, और दूसरा वो चीज़ें जो आप इंट्रोडक्शन में डायरेक्टली नहीं बोलते हो, वो चीज़ें जो अपने रिज्यूमे में डायरेक्टली नहीं लिखते हो बट वो आपसे पूछी जाती है, तो आप उसको कैसे नरेट करो। ओके, नाउ हियर हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगा है, और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है कमेंट सेक्शन में लिखने का, तो आप लिखिए अपनी स्ट्रेंथ के बारे में, वीकनेसेस के बारे में, और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। आई होप यू ऑल एंजॉय दिस लेक्चर। बाय बाय।